Hello, dear friends. Welcome to ZenPod once again. With me in the studios today, I have Miss Triveni Acharya. Triveni Acharya is a lifelong humanitarian, a woman who has been fighting sex traffickers since 1993. Triveni is one of the 100 Women Achievers awarded by the President of India. An Indian journalist and an activist living in Mumbai, she is best known for her work with the anti-sex trafficking group, the Rescue Foundation. Triveni worked as a journalist for Asia's oldest newspaper, Mumbai Samachar, before she co-founded the Rescue Foundation with her late husband, Mr. Balakrishna Acharya. Rescue Foundation, which was inaugurated in 2003 in Mumbai, supports over 100 survivors. After the tragic death of her husband, she took over running the Rescue Foundation as a president. In 2007, Rescue Foundation expanded the rehabilitation operations, inaugurated a Boyser home, a project on over 50 acres of land, complete with multiple facilities such as the training center, the recovery care center, agriculture area, etc. She then expanded her rehabilitation operations to Pune, inaugurating a Pune home with a capacity of over 100 survivors. It was then expanded further to Delhi, again giving a capacity to over 100 survivors. The organization Rescue Foundation is devoted to the rescue, rehabilitation and repatriation of victims for human trafficking from different parts of India, Nepal and Bangladesh. She has been conducting brothel raids since 1993. The organization frees roughly 300 girls a year and also provides counseling, on-the-job training and repatriation. Triveni has won several awards, some of the significant ones being the Stree Shakti Award for Women Entrepreneurs, the Asia Democracy and Human Rights Award by the Taiwan Foundation by the Taiwanese President, Civil Courage Prize of the Train Foundation awarded annually to those who resolutely combat evil, Humanitarian Honorary of the World of Children Award twice, Thomson Reuters Top Slavery Award, the Dare to Dream Award, the Rajiv Gandhi Manav Seva Award, and the iconic Woman of the Year Award by Indian Merchants Chamber. Hello, my dear friends. It gives me great pleasure to welcome Ms. Triveni Acharya to our program. Triveni ji, namaste and welcome. Thank you. Triveni ji, मेरा पहला सवाल हर दम की तरह, आपके अनुसार व्हाट इज आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी? देखिए, आध्यात्मिकता की डेफिनेशन तो मैं आई कांट एक्सप्लेन, ओके, बट जीवन के अर्थ की खोज, कुछ ऐसा जो कि मैं बयां नहीं कर सकती शब्दों में, लेकिन मेरे ख्याल से अध्यात्म यानी कुछ ऐसा जो भौतिक जो जीवन है उससे कुछ अलग, जो सूक्ष्म है, जो आत्मा है. बेसिकली मैं बहुत छोटे से मैं विपश्यना की साधक हूँ, मेडिटेशन करती हूँ. तो मैं अपने आत्मा की आवाज को सुनना और बाहर के जो भी भौतिकवाद है उसको देखना, एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से देखना. और मैं कर्म के सिद्धांत में भी मानती हूँ कि कर्म का सिद्धांत, जो अन्याय के सामने लड़ना. करेक्ट. मैं रिलीजियस या धर्म वो बात नहीं करती हूँ. मैं मानव, आत्मा ही परमात्मा है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है. तो मेरे लिए डेफिनेशन अध्यात्म की देना मुझे मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो कुछ अलग है, भौतिकवाद से कुछ अलग, जो सूक्ष्म है, जो हम देख नहीं पाते लेकिन अनुभव कर सकते हैं. अपने आप में, निजी में, एक ध्यान में आप बैठ जाते हो. तभी अभी जैसे कि कोविड आया, बहुत सारी चैलेंजेस आई, बहुत सारी खराब सिचुएशन आई, लेकिन फिर भी अपने आप को एक बैलेंस में रखना, मैं उसको अध्यात्म मानती हूँ. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आंसर. त्रिवेणी जी, यू हैव बीन, लड़कियों के लिए आप चैंपियन रही हैं. 5,000 से ज्यादा लड़कियों को आपने तस्करी से रोका है. फॉर द लिसनर्स, तस्करी मीन्स ट्रैफिकिंग. कृपया हमें त्रिवेणी जी के इस विकास की यात्रा के बारे में बताएं. टेल अस हाउ यू केम टू वेयर यू आर, वी वांट टू नो. तो मैं एक जर्नलिस्ट थी न्यूज़पेपर में. मेरे लिए समझो कि रोज के न्यूज में जैसे बलात्कार है, मर्डर है, वो मुझे कुछ असर नहीं करता था. मतलब एक आज का न्यूज कल तो बासी हो गया,
तो मैं पत्रकार के तौर पे काम करती थी, तो इतनी इमोशनल नहीं थी। लेकिन एक दिन जब मैं रेड लाइट एरिया में गई, मुझे एक असाइनमेंट मिला था, एक फिल्मी हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने गए थे और मुझे वो वहां पे कवरेज के लिए जाना था। सुबह में रक्षाबंधन का टाइम था और सुबह का वो था। तभी मेरे जो मेल जो थे कलीग, उन्होंने मजाक में बोला कि अरे तू बदनाम गलियों में जाएगी एक न्यूज स्टोरी कवर करने के लिए। तो मैं बोली हाँ जाऊंगी। और मैं वहां पे गई और जो रेड लाइट एरिया में वहां पे छोटी बच्चियों को देह व्यवसाय में मैंने देखा। तो वहां जाके फिर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने जाके गली में बच्चियों से बात किया, तो मुझे पता चला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से यहाँ आती है और ऐसे हजारों गरीब राज्य, गरीब देश से लड़कियां मानव तस्करी से लाई जाती है और उनको देह व्यवसाय में डाला जाता है और उनको वहां से छूटने का या उनके लिए काम करने के लिए कोई एनजीओ नहीं था। ये स्टोरी ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया, मुझे रोना आ रहा था। और जैसे मैंने हस्बैंड से जाके बात किया कि ऐसा ऐसा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेरे लिए आज से 25 साल पहले मैंने नहीं सुना था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। जब मैंने मेरे हस्बैंड मिलिट्री से रिटायर होके आए थे, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था और मैंने बताया कि नेपाल, बांग्लादेश और भारत के गरीब राज्यों से बहुत सारी लड़कियां को मानव तस्करी करके, जैसे ड्रग्स और वेपन्स की जैसे हेराफेरी हो रही है, वैसे मानव तस्करी हो रही है और उनको अनैतिक देह व्यवसाय में बेच दिया जाता है और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है वहां से निकलने की, और एकदम इलीगल जो चल रहा है और इसके ऊपर काम कोई संस्था नहीं कर रही है। और जब मेरे पति को ये बताया, तभी उन्होंने बोला कि अरे ये अब जब तुम बात कर रही हो तभी मुझे याद आया कि मेरा पहचान वाला एक लड़का है, वो एक लड़की को प्यार करता है लेकिन वो सेक्स वर्कर है और उसकी जो मैडम है जो कोठा मालकिन उसको बाहर नहीं निकलने देती है। तो तू रिपोर्टर है, तुझे पुलिस और से पहचान है, तो तू उसमें कुछ हेल्प कर सकती है क्या, ये उन्होंने पूछा। और तभी ये हमारी शुरुआत हुई कि इनके भी काम करे। और जब हम एक लड़की को बचाने गए तभी 15 लड़कियां ने बोला कि हमको ये यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से बचना है। तो ये अचानक हमारी शुरू हो गया कि हमारा तो एक ही लड़की को बचा के, मतलब नेकी कर कुएं में डाल, कोई ये इनके लिए काम करना या ऑर्गेनाइजेशन बनाना या ये करना कुछ था नहीं, लेकिन एकदम अचानक से ये हो गया और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि 15 लड़कियों को हम वहां से बचा के लाए और फिर उनको घर भेजना, उसका घर ढूंढना। तो इस तरह से हमने शुरू किया आज से 25 साल पहले 1993 में। तो हम इंडिविजुअल काम करते थे, जैसे कि मैं दिन में पत्रकार रहा करती थी और रात को फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाना। हस्बैंड डे कोई कस्टमर बन के जाते थे, वहां पे छोटी लड़कियां है फोर्सफुली जो है उनको ढूंढना, उनसे बात करना और इनकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वहां से पुलिस के पास जाना, रेस्क्यू ऑपरेशन अरेंज करना, उसको रेस्क्यू करना, फिर उसका लीगल प्रोसीजर खत्म करना और फिर उनका रिहेबिलिटेशन करना। तो ये लेकिन ये जर्नी काफी चैलेंजेबल रही, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत तकलीफें आई। और एक जैसे कि अच्छा काम, अभी मैं अध्यात्म उसको भी बोलती हूँ कि जब आप एक कोई अच्छा काम करना शुरू करते हो तो आपको कुछ अलौकिक एनर्जी, अलौकिक शक्ति आपको हेल्प करती है। और हमें जैसे कि करप्ट ऑफिसर भी हुआ करते, लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर भी होते पुलिस में, तो वो हमें हेल्प करते गए। और जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया था कि इनको देह व्यवसाय से, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन से रेस्क्यू करवाना और फिर उनका पुनर्वसन करना, वो काम में हमें उनकी मदद मिलती। रेस्क्यू फाउंडेशन, त्रिवेणी जी, श्रोताओं से जरा इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताइए, एनजीओ के बारे में।
हाँ, एक्चुअली रेस्क्यू फाउंडेशन का पहला नाम था माइटी नेपाल, क्योंकि पहले हमने जब ये काम स्टार्ट किया तभी हमने कोई एनजीओ नहीं बनाया था, लेकिन एक एनजीओ का हम वॉलंटियर बन के काम करते थे। लेकिन रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना हुई 2000 में हमने रेस्क्यू फाउंडेशन रजिस्टर किया। तो रेस्क्यू फाउंडेशन रजिस्टर करने का यही मतलब था कि हम तो 5 साल से ये काम करते थे। जैसे रेड लाइट एरिया में या हॉटस्पॉट पे जहाँ पे छोटी बच्चियां या फोर्सफुली जिसके पास प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, और पुलिस के पास वो शेयर करना, पुलिस की हेल्प से उनको रेस्क्यू करना, उनके लिए लीगल फाइट करना, कोर्ट केस फाइल करना, फिर उनका काउंसलिंग करना, उनकी मेंटल हेल्थ की देखभाल करना से लेके उनका पूरा वो एक अपने नया जीवन एक शुरुआत करे। जैसे कि अगर कोई ड्रग एडिक्टर हो गया है, कोई अल्कोहलिक हो गया है, तो उसमें से उसको बाहर निकाल के एक नॉर्मल लाइफ में लाना, उसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। क्योंकि और मैं रेस्क्यू फाउंडेशन की एक और खास ये कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि हमें रेस्क्यू फाउंडेशन बना के एनजीओ बना के रजिस्टर करके ये सब कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन हम ये काम कर रहे थे और बीबीसी पे कुछ न्यूज दिखाया, तभी यूएसए से रिबोक कंपनी ने हमें रिबोक ह्यूमन राइट अवार्ड $1 लाख का डिक्लेयर किया। तो $1 लाख यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए या एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए, ये सब तो ये सब की वजह से फिर रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना हुई। और रेस्क्यू फाउंडेशन का काम ये है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटर है, हमारे जो स्पाई है, हमारे वॉलंटियर है, वो ऐसे ही रेड लाइट एरिया है, हॉटस्पॉट है, जहाँ पे मानव तस्करी से लाई गई बालिकाओं और महिलाओं, उनको मेंटली प्रिपेयर करना, अगर वो वहां से निकलना चाहती है तो फिर वो पुलिस के पास जाना, फिर पुलिस के साथ जाके रेस्क्यू ऑपरेशन करना, फिर उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना, फिर उनकी हमारे शेल्टर होम में लाके उनकी देखभाल करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेट करना, उनको बेसिक एजुकेशन से लेके उसको आगे की पढ़ाई का, और अगर वो दूसरे देश की है तो क्रॉस बॉर्डर रिपेट्रिएशन करना, तो पूरा रेस्क्यू फाउंडेशन देखता है। रेस्क्यू फाउंडेशन का अभी 4 शेल्टर होम है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक पूना में है, और एक यहाँ पे गुजरात की बॉर्डर पे है जो पालघर में है, जो लॉन्ग स्टे होम है। यहाँ पे HIV पीड़ित जो महिलाएं है और बाकी जो बच्चियां है जिसको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसका पूरा जीवन, उसका हमेशा का घर है हमारा, वो यहाँ पे पालघर में है। ऐसे 4 शेल्टर होम चला रहे हैं हम। फैंटास्टिक। त्रिवेणी जी, 20 साल से आप ये लगातार आपकी कहानी तो एकदम अविश्वसनीय लग रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई एक साधारण मानुष जैसे हम लोग हैं, आप इतना कुछ कर सकते हैं। काफी चुनौतियां रही होगी रास्ते में when you came to this point। इसके बावजूद बताइए आप कैसे आगे बढ़ते रही? People must have tried to stop you, they would have tried to not let you do your work, despite that आप कैसे आगे बढ़ते रही? देखिए, जब काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसे कि पुलिस बोलते थे कि आपको क्या समाज सेवा का भूत चढ़ा है, कि लड़कियां रेस्क्यू किया और बोले कि लेके जाओ तुम्हारे घर पे। तो एक साथ पे 15 लड़कियां को अपने छोटे घर में लाना और फिर उसको घर पहुंचाना, तो वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां आती रही। और वो टाइम तो आज से 25 साल पहले तो यहाँ पे मुंबई में जैसे कि माफिया राज था, यहाँ पे इतना सारा वहां पे रेड लाइट एरिया में मर्डर होना, या ये तो बहुत आम बात थी। और हम जब जाते थे तो कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, कभी हमारे टीम के ऊपर अटैक करना, कभी हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो जाते थे, कभी बहुत बड़ा मोब आ जाता था। तो वो तो सब चुनौतियां हमारे सामने आई। लेकिन 2005 में हमें बहुत बड़ी
चुनौती आई, जो मेरे पति का मर्डर हो गया। उनको सॉरी, वेरी सॉरी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, उनको और थ्रेटिंग कॉल्स तो बहुत आते थे हमें कि हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमें लेटर आते थे धमकिया का। तो बहुत सारी चुनौतियां आई। और लेकिन जैसे पहले मैं पत्रकार थी, तो एक पुलिस से एक रिलेशन था, मैं क्राइम रिपोर्टर थी, तो वहां से हेल्प मिलती गई। और जैसे मैंने बताया कि कुछ तो है जो चाहते हैं कि जैसे बोलते हैं कि अगर ईश्वर खुद नहीं आ सकता है ऐसे हेल्पलेस लोगों को हेल्प करने के लिए, तो वो अपना एक बंदा को भेजता है कि चलो, तो हो सकता है कि कोई अच्छा ऑफिसर हमें मिल गया है, कोई थोड़ा डोनेशन देने वाला कोई हमें मिल जाए। तो वैसे ही हम अपने घर में होम चलाते थे, अपने घर में। और तभी कोई बंदा को पता चला तो आए कि बोलो हम आपको एक बिल्डिंग बना के देते, तो हमको 7 माला की बिल्डिंग बना के दिया। तो इस तरह से जैसे चुनौतियां आई, वैसे हमें मदद भी मिलती गई। वाओ। 2005 त्रिवेणी जी आपके लिए बहुत दुखद वर्ष रहा। It was a very tough year. I mean, I know you lost somebody very dear to you. क्या आप श्रोताओं के इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ, उसके बावजूद यू केम आउट ऑफ इट। आई वांट यू टू शेयर विद पीपल, आप कैसे निकले इससे? ये इनका मैं उनका 12th में 2005 को उनका मर्डर हुआ। उससे 1-2 दिन पहले फोन आया था, लेटर भी आया था, धमकी देते थे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मत जाइए। तो बोले नहीं, जाना है। और मौत तो कहीं पे भी आ सकती है। जैसे कि इंदिरा गांधी को इतने सुरक्षा कर्मी होते हुए भी उनका मौत हुआ था, क्योंकि उसका मौत लिखा था। तो मैं बोली बिना वेपन, बिना पुलिस भी इतना एस्कॉर्ट नहीं है हमारे पास, न हमारे पास कोई गनमैन है कि हम कहीं पे भी निकलते हैं कभी। तो बोले इंदिरा गांधी को भी इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी उनकी मौत हो गई थी, तो मुझसे नहीं डरना है। और वो गए। और तभी मैं बोली कि मैं भी साथ में चलती। तो बोले कि नहीं, 2 में से एक को जिंदा रहना पड़ेगा। अरे बाप रे। और जब हमने ये काम की शुरुआत किया था, अभी उन्होंने बोला मैं मेरे बिजनेस वाइंड अप करता हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर आप अपना बिजनेस वाइंड अप करते हो तो मैं भी जर्नलिज्म से रिजाइन करती हूँ। करेक्ट। काम की शुरुआत की थी, तभी मैंने भी बोला था कि जर्नलिज्म में रिजाइन कर देती हूँ। तभी उन्होंने बोला था कि 2 में से एक को कमाना पड़ेगा। और लास्ट डे उन्होंने बोला कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं आएगी, क्योंकि 2 में से एक को जिंदा रहना पड़ेगा। और जब इनके ये मर्डर हुआ, तभी मुझे बहुत ये हुआ कि क्योंकि फैमिली वाले सब बोल रहे थे कि तुमने क्या पाया, क्या ये, हम मना कर रहे थे कि ये सब में मत पड़ो। तो बहुत ये हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था। लेकिन फिर मुझे अपनी जो मासूम बच्चियां थी उनका चेहरा याद आया। तो फिर मैंने वो चैलेंज उठाया कि तुमने उसको मारा है ना, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। और मेरी पूरी टीम है, जो ये हमारी सर्वाइवर है, जो जिसको हमने रेस्क्यू किया है, तो पूरी हमारी रेस्क्यू टीम है। तो मतलब मैं जाने के बाद भी 2nd जनरेशन मेरे पास तैयार है। तो आप कितने को मारोगे? तो जब उनका मर्डर हुआ, तो ये माफिया लोग है या जो भी गली के गुंडे हैं, उन्होंने आतशबाजी किया, मिठाई बांटी। तो मुझे बहुत ही एक गुस्सा आया, एक खुन्नस आया कि आप कितनों के मारोगे। लेकिन मैं मेरा ये जो शुरू किया है, जो नाबालिग बच्चिया को, मासूम बच्चिया को इसमें से बचाने का, उनका बचपन उसको वापस देने का, उसकी खुशी उसको वापस देने की, वो मैं करती रहूंगी। और फिर मैंने जर्नलिज्म से रिजाइन किया। और ये
कंटिन्यू किया। बाप रे, सलाम है आपको सच में त्रिवेणी जी। एक बात बताइए, लोग कहते रहते हैं कि अच्छा आप सेक्स वर्कर्स की संस्था है, आपको कैसे लगता है जब ऐसी बातें आप सुनते हैं तो? देखिए, आज भी हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा है। करेक्ट। जैसे कि अच्छा, अरे आप वेश्या के लिए काम करते हो, आप सेक्स वर्कर के लिए काम करते हो। जैसे कि कोई ऑर्फनेज चलाता है या ओल्ड एज होम चलाते हैं, तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट होता है। करेक्ट। मेरे लिए तो मेरा पड़ोसी मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि जब हमने ये शुरू किया था तो आसपास के लोगों ने विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। अभी एक ये विलेज में हमने ये रिहेबिलिटेशन सेंटर लॉन्ग स्टे होम बनाया है, तो यहाँ आसपास के ट्राइबल लोग थे जिन्होंने बोला कि अरे तुम गंदी लड़कियों को यहाँ लाओगे, तो इसके लिए तो बहुत सारा विरोध हुआ और लोग हंसते थे कि एक तो औरत और ये सब करने लगे हैं। तो और आज भी जब जो ये लड़कियों में आज भी उनके माथे पे जैसे सेक्स वर्कर, उनको ये कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये मेरी बहन, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है। करेक्ट। तो सोशल स्टिग्मा आज भी है, पहले था, सिर्फ थोड़ा कम हुआ है। और आज भी जो पुरुष है उनकी डिमांड कहीं कम नहीं हो रही है। Correct. डिमांड है, इसलिए सप्लाई है, और लोगों में ये सिंपैथी नहीं है। जैसे कि सेक्स वर्कर है तो वो उनके लिए तो एकदम नफरत की भावना है, सच में। कॉल गर्ल, सेक्स वर्कर, लेकिन वो पैदा हुई थी, वो जन्म से सेक्स वर्कर नहीं थी या कॉल गर्ल नहीं थी, मजबूरी ने बनाया है उसको। करेक्ट। तो ये जन्म से जब पैदा हुई थी तभी किसी की बेटी थी। करेक्ट। जन्म से कोई सेक्स वर्कर नहीं थी ना, तो कॉल गर्ल थी। लेकिन आदमी ने इसकी डिमांड किया, और इंसान ने एक, वो कोई कॉमोडिटी नहीं है, वो खरीदने बेचने की चीज नहीं है। उसको ट्रैफिक किया, उसकी मासूमियत का, उसकी नादानी का फायदा उठाया, या उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसको वहां तक पहुंचाया। तो उसके लिए नफरत मत रखो, उसके लिए सिंपैथी होनी चाहिए। वो हमारा एक समाज का हिस्सा है, वो भी हमारी किसी की बहन बेटी है, इस तरह से होना चाहिए। तो आज तक हमें जैसे फंड क्राइसिस है या सोसाइटी से जो स्वीकृति मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। ठीक है, वैसे देश विदेशों में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज अवार्ड दिया है, मेरे पति को मरणोत्तर अवार्ड दिया है भारत सरकार ने, और हमें भी स्त्री शक्ति अवार्ड, राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड, राष्ट्रपति सब मिला है। अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं, तो वो रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन आज भी समाज में सोशल स्टिग्मा है। एक पत्रकार और अब एक जीवन रक्षक, कैसे लगता है त्रिवेणी जी? अब इतने अलग ऑक्यूपेशन है दोनों। देखिए, तभी भी न्याय के लिए लड़त थी, पत्रकार थी तभी भी, और आज भी न्याय के लिए लड़त है। तभी ऐसा था कि तभी एक, जैसे मैंने बताया, साक्षी भाव के दृष्टि भाव की, तभी मुझे फील नहीं होता था कि किसी का रेप हुआ या किसी का मर्डर हुआ या किसी किडनैप हो गया बच्चा, तो एक न्यूज लिख देना और दूसरे दिन भूल जाना। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं खुद फील करती हूँ, मैं अनुभव करती हूँ कि ये मेरी बेटी है। इसकी जगह पे, उसके चेहरे पे मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई देता है। तो अभी जो इमोशन है, अभी जो करुणा है, वो एक पत्रकार थी तभी नहीं थी, लेकिन एक पत्रकार होने का फायदा ये हुआ कि हिम्मत, जैसे कि कहीं पे भी संशोधन करना, खोजना, कहीं पे भी झिझक नहीं होती थी, और आज भी नहीं होती है। फैंटास्टिक। सफलता की आपकी परिभाषा, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? देखिए, मैं किसी के चेहरे पे एक मुस्कान दे पाऊं और मुझे अच्छी नींद आ जाए, मेरे लिए वो सफलता है। सफलता कोई करोड़ों रुपया बनाना या कोई बिजनेस में, लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं
मेरे लिए, मेरे पास आज इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है कि हमने जो रेस्क्यू किया, हमने जो बचाया, वो लड़की खुद आज बिजनेस चला रहे, या खुद ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, या एमबीए हो गई है, या वेरी गुड, कुछ बन रहे, वो खुद लीडर बन गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि वही मेरी सफलता है कि एक आज जैसे टीचर्स डे है, हाँ, तो जब टीचर से स्टूडेंट आगे बढ़ता है वो टीचर की सफलता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। इतने सालों से त्रिवेणी जी एक बहुत ही जोखिम भरा काम, कठिन और चुनौतीपूर्ण काम आप जो दिन रात कर रहे हैं, श्रोताओं से बताइए कि आप इतना कुछ करने के बावजूद आपका संतुलन आप कैसे बनाए रखते हैं और शांत कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पे वो शांतता कैसे रहती है? जैसे मैंने बताया कि जैसे अध्यात्म का मैं डेफिनेशन नहीं दे सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ये जो बैलेंस और शांति, वो प्रेरणा मुझे अपनी बच्चियों से ही मिलती है। जो बच्चियां कभी नर्क की यातना भुगत रही थी, वो आज हंसी खुशी से खेल रही है, उसको अपना बचपन वापस मिला है, अपनी खुशी वापस मिली है, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और जैसे कि अभी कोविड स्टार्ट हुआ, करेक्ट, तो हम बोले कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लेबर जा रहे थे, माइग्रेंट लेबर, करेक्ट, तो हमने सोचा कि हमें रिलीफ एक्टिविटी करना है, लेकिन फंड नहीं है। करेक्ट, तो बच्ची, हमारी लड़कियों ने बोला कि आप हमें 4 टाइम खाना देते हो दिन का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, 4 बजे का नाश्ता और रात का डिनर, हमारा 2 मील कट कर दीजिए। ओह हाउ नाइस। ये गरीब लोगों को दीजिए, क्योंकि हमारे से ज्यादा तकलीफ उनको है। हाउ नाइस। तो ये प्रेरणा उनसे मिलती है। सुबह में यहाँ पे जैसे हम बच्चियों से मिलते हैं, तो वो कुछ त्याग करके दूसरे को खुशी देना, वो प्रेरणा मुझे उनसे ही मिलती है। और वो इनके ऊपर देखो, इतने अत्याचार हुए, हाँ, जिसके ऊपर विश्वास किया उसने उसको धोखा दिया, अपनों ने उसको बेचा, उसको इतना उसके जीवन में इतनी कठिनाई आई कि उसको मानव जात से विश्वास उठ गया। लेकिन फिर भी वो अभी फिर से वो हंसी खुशी उसमें से बाहर निकल के वो उनको खुश है कि ठीक है, जो लवर से प्यार किया था उसने फेक मैरिज किया और पति ने उसको बेच दिया, तो उसको पुरुष देख के नफरत आती थी, लेकिन फिर वो उसमें से बाहर आई, वो डिप्रेशन, वो ट्रोमा में से बाहर आने के बाद आज उसको लगता है कि नहीं, पूरी दुनिया खराब नहीं है। हाँ। और वो पहले वायोलेंट होते थे, जैसे कि ये बस उनसे ही सीख रही हूँ कि जैसे वहां पे लोथल में क्या करते हैं कि उनको सरेंडर करने के लिए ड्रग एडिक्टर बना दिया जाता है, या अल्कोहलिक, या चेन स्मोकर, ताकि वो उसमें से बाहर निकलने का सोचे ही नहीं। अच्छा, जब वहां से वो रेस्क्यू होके आती है, तो उनका डी एडिक्शन की ट्रीटमेंट के टाइम वो बहुत वायलेंट हो जाती है, तोड़ फोड़ करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, झगड़ा करना। लेकिन फिर उनके काउंसलिंग के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, और आज वो इतने हंसी खुशी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो उनसे भी सीखने को मिलता है कि उनके इतना कुछ सहने के बाद वो कितना खुश है, उससे तो कहीं अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं। फैंटास्टिक। सच में इतने सालों में त्रिवेणी जी आपने इतनी सारी लड़कियां और बच्चों के लिए आप एक आशा की किरण बनी रही हैं। आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पे? कभी लगता है ऐसे बैठ के सोचते हैं तो? नहीं, ऐसे मैंने बताया ना कि देखिए, आज तो मैं हमारे चारों शेल्टर में मिलके 350 बच्चियां है, तो एक लड़की की माँ होना और इतनी बच्चियों की माँ, सब मुझे मम्मी बोलते हैं। तो एक ये होता है, कोई बीमार हो गया तो उसका थोड़ा टेंशन होता है, कभी एक
कोविड में एक पॉजिटिव आई तो बहुत बड़ा टेंशन होता है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एक कहीं ना कहीं से कोई एक शक्ति है, कोई परमात्मा है जो मुझसे ये करवा रहा है, और यही मुझे हिम्मत देता है। मुझे बोझ नहीं लगता है कहीं पे। ठीक है, कभी कभी डिमोरलाइज हो जाती हूँ कि कब तक करते रहेंगे, और क्या मेढक को जोखने वाला काम कि हम यहाँ से रेस्क्यू करते हैं, और अभी देखो अभी कोविड आया, बहुत सारी लड़कियां और ट्रैफिक हो रही है, बहुत चाइल्ड लाइन से हमें फोन आते हैं, फैमिली में एब्यूज हो रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं कि फैमिली में ही एब्यूज हो रहे हैं बच्चे। और तो कभी कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बढ़िया जिम्मेदारी है। ठीक है, एक जिम्मेदारी तो है बच्चियों का इतने बड़े संभालना कि आग के गोले पे, क्योंकि हरदम मुझे देखो मैं वहां से तो हम बचा के लाए, लेकिन और आगे जाके क्योंकि अभी हमारा काम शुरू हुआ है उसको, और जब सोसाइटी में जाएगी, जब लोगों के सामने जाएगी, तब हरदम उसका पास्ट उसको कहीं पे भी अवरोध नहीं बनना चाहिए, उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसमें इतने 20-25 सालों में आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगा त्रिवेणी जी की ये सब छोड़ दे या हार मान ले, कभी भी? हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ। एक बार तो मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ, तभी मुझे लगा कि ये छोड़ दे, बस बहुत हो गया। करेक्ट। दूसरी बार हमारी टीम के ऊपर जब अटैक हुआ, अच्छा हमारे पास जो स्पाई है, हमारे साथ जो वॉलंटियर है, हमारे साथ जो यूथ जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली में भी नहीं बताया है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे आईटी के स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन देते, हमारे लिए काम करते। अभी उसके ऊपर हमला हुआ, वो आईसीयू में गए, तभी मुझे लगा कि फंड का प्रॉब्लम, कभी कुछ तो कभी कभी हो जाता है कि ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे अगर हम छोड़ देंगे तो फिर इनको कौन करेगा? अभी बहुत सारे हमें मिसिंग कंप्लेंट अभी तो पेरेंट्स से भी आ रही है। पहले तो पेरेंट्स का बच्चा मिसिंग होता था तो कभी पेरेंट्स नहीं बताते थे, अभी तो किडनैप होता है तो पेरेंट्स से आती है, एनजीओ से आती है, पुलिस से आती है। हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के साथ जुड़े हैं तो हमें मिसिंग कंप्लेंट्स आती है। तो मिसिंग कंप्लेंट की बच्ची को ढूंढना, उसको रेस्क्यू करना, उसको अपने घर तक पहुंचाना, उसके देश तक पहुंचाना, वो सब होता है। तो कभी कभी ड्यूल माइंड हो जाता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कभी ये सोचती हूँ कि अगर मुझसे ही डर के क्यों छोड़ूं? जैसे कि मौत तो इतने सुरक्षा गार्ड होते हुए भी इंदिरा जी को मौत आ ही गई, क्योंकि उसका मेरा जीवन है उतना। लेकिन किसी के चेहरे पे मैं मुस्कान दे के अगर मुझे वो मौत आए तो मुझे वो मंजूर है। इसलिए और अभी जैसे हमें सेकंड जनरेशन है, अभी हमारी सर्वाइवर ही हमारी रेस्क्यू टीम है, वही लीडर है, वही सब कर रहे हैं। अभी तो मुझे सिर्फ उनको गाइड करना है, एक लीडर होने के नाते उनको मुझे बस गाइड करना है, बाकी तो सब संस्था तो वही चला रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ वर्षों से पहले कुछ वर्ष पहले आपने एक नन्हे से बालक को अपनाया था, उस कहानी बताइए। वो कहानी को अब तो वो बालक थोड़ा बड़ा हो गया होगा, बट वो कहानी बताइए। और उसका नाम लव है ना? लव है, प्लीज बताइए। अभी तो वो जवान हो गया। वो भी एक सेक्स वर्कर का बच्चा था, और जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए थे तभी जैसे माँ को हम लाते हैं, फिर पुलिस स्टेशन में वो बोलती है कि मेरा बच्चा कोई और जगह है, क्योंकि इनको कोई अलग ड्रॉपिंग सेंटर में रखते हैं माँ को मिलने के लिए। अच्छा, माँ और बच्चे को अलग अलग रखते हैं, 8 वीक में 15 दिन में एक बार बच्चे को लाते हैं और बोलते हैं कि तू अगर ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं करेगी तो तेरे बच्चे को मार देंगे। अच्छा, तो वो बच्चे का ममता, उसके लिए माँ प्रोस्टिट्यूशन में रहती है।
हम लड़कियों को रेस्क्यू किया था और जब पुलिस स्टेशन में आए तब पता चला कि उनके बच्चे जब पुलिस स्टेशन में वो महिला ने बताया कि मेरा बच्चा तो दूसरी कोई मौसी के पास है, तो पुलिस और हम वो बच्चे को लेने के लिए गए। तभी वो शूटिंग सेंटर में 10-15 बच्चे खेल रहे थे। ओके। तो वो हम बच्चे को लेके आए, तो उसमें वो बोली ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा ये है। तो फिर ये बच्चा किसका है? तो बोले नहीं, इसकी माँ तो मर गई है, इसने तो ब्रोकेल में सुसाइड कर लिया था, कोई माँ नहीं है। तो फिर हमने उसके साथ रेस्क्यू कर लिया और हमने पुलिस को बोला कि ये इसकी देखभाल हमारी संस्था करेगी। तो फिर वो बालक तो छोटा था लेकिन बोलना सीखा, तो सबसे पहले माँ मुझे बोला। nice. और नेपाली, हाँ, वो नेपाली था। तो जब नेपाल की लड़कियों को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो नेपाल का बच्चा है करके उसको नेपाल छोड़ना था। हाँ. तो वहां पे लव रो रहा है, यहाँ पे मैं रो रही हूँ। और हमारे पास तो ऐसे रेस्क्यू के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बोले ऐसे तो हम हजारों बच्चों को माँ बाप बनना है, तो ऐसे रोना क्या। लेकिन मैं बोली कि नहीं, उसकी मम्मी नहीं है, तो बाकी के बच्चे जा रहे, उसकी माँ है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कितने साल का हो गया अभी वो त्रिवेणी जी? अभी 21 साल का हो गया। वाओ, ही इज बिकम एन एडल्ट नाउ। हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसी इन अ फील्ड लाइक दिस, ऐसी परिस्थितियों में आप, मैंने सुना है आपके टीम से भी आप 16, 18, 20 घंटे रोज काम करते हैं, कोई वीकेंड नहीं, ऐसे ही करते रहते। आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? Where do you get the energy from? हम 10 घंटे काम करते हैं, हम थक जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि देखिए, पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, विपश्यना। और दूसरा मुझे ऊर्जा मिलता है जो मेरी बेटियों से। जैसे मैं तो 24/7 300-350 बेटियों की माँ होती हूँ, क्योंकि सब मुझे मम्मी बोलते हैं। उनकी जो मुस्कान है, उनका जो पॉजिटिविटी है, उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। इतना होने के बावजूद भी वो उभर रहे हैं, वो भूल रहे हैं, पास्ट भूल रहे हैं, तो इनसे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। Beautiful, beautiful. I'm sorry we have to take a break right now, but when we are back in part 2, we will talk with Triveni about what do awards like Stree Shakti, human rights, etc. mean to her. What can we as a community do in order to protect this movement and save the girls? Triveni also talks to us about her hobby, which is her medium of spirituality as well, her inspiration in life, Triveni's message to us, and how we can also do our bit to support the Rescue Foundation and protect the children by offering services and expertise like marketing, legal, etc. Finally, we end our conversation with a rapid fire just to lighten the mood. So, look forward to seeing you all on part 2 of the episode in our conversation with Triveni Acharya. Thank you and take care.